شاعرہ سے درخواست کرتی ہوں کہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں یہاں پر آئے ہوئے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، ہمیں یہ احساس دلائی ہے کہ اس ظلم میں ہم صرف اکیلے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، جبری گمشدگی پاکستانیوں اور دنیا کے لیے محض ایک لفظ ہوگی، لیکن ہم سے پوچھئے اس ایک لفظ میں کتنے درد چھپے ہیں، ہم سے پوچھئے اس ایک لفظ میں کتنے کرب چھپے ہیں۔ اس ایک لفظ نے کئی خاندانوں کی خوشیاں برباد کر دی ہے۔ یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، ایک آگ ہے جو کسی آنگن کے تمام خوشیوں کو نگل جاتی ہے۔ میں وہ بدنصیب بہن ہوں جس کے بھائیوں کو 4 سال پہلے پکنک مناتے ہوئے ان کے دیگر دوستوں کے ساتھ لاپتہ کیا گیا۔ 4 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک انہیں بازیاب نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایف سی اور آئی ایس آئی نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا، نیوز پیپرز میں، نیوز چینلز پر ان کی تشدد زدہ تصاویریں خود وائرل کیے تھے، لیکن آج جب میں عدالتوں میں جاتی ہوں، جب میں پیشیوں میں جاتی ہوں، مجھے زبردستی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان تشدد زدہ تصاویروں کے بعد بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ ہم پر الزام لگاتی ہے۔ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم بھی تھا جس کو لاپتہ کیا گیا، اور وہ اس بات کو نہیں مان رہے، آج کہہ رہے کہ آپ کے بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے بھائیوں کو نقصان دیں گے۔ ان کے سارے دوستوں کو بازیاب کیا ہے اور آج مجھے کہہ رہے کہ آپ جو ہے گواہ لے کر آؤ۔ کیا گارنٹی ہے، کیا ان کے دوستوں نے گواہی دی وہ محفوظ رہ سکیں گے؟ اگر ان کو پہلے بھی دھمکی دی گئی ہے کہ آپ نے گواہی دی، ہم آپ کو بعد میں واپس لاپتہ کر دیں گے یا آپ کو مار دیں گے، کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں خود گواہ ہوں، یہ تصویریں گواہ ہیں، میرے بھائی پاکستانی ریاست کے حکومت خانوں میں ہیں۔ میں ان سے ہر بار یہی اپیل کرتی آ رہی ہوں کہ خدا را میرے بھائی کو چھوڑ دے، میرا بھائی میرے گھر کا سہارا ہے، میرے بوڑھے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، میرا ابو میرے سامنے رو کر کہتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں، میرا کیا قصور ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، میں نے خضدار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، میں پڑھ رہی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج میں اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ سڑکوں پر ذلیل ہو چکی ہوں۔ میرا ایک سمپل سا مطالبہ ہے، میں نے پاکستان کا کیا بگاڑا ہے؟ ان معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے؟ آپ ماں گل سے پوچھے، رشید کی بیٹی جو جانتی تک نہیں ہے میرا ابو کون ہے، کہاں پر ہے۔ رشید کی معذور امی ہے، کیا وہ یہاں پر نہیں آنا چاہتی جو ایک کمرے میں بند 4 سالوں سے اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہے؟ میرے بوڑھے والدین، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے آصف کے بغیر۔ ہم ہر بار ایک اپیل کرتے آ رہے ہیں کہ خدا را ہمارے لوگوں کو چھوڑ دے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چھوڑ دے، ہم آپ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ انہیں عدالت میں تو لے کر آئیں، ہم انہیں دیکھ تو لیں۔ ہم 4 سالوں سے انتظار میں ہیں کہ ہمارا بھائی کہاں ہے، اسے کھانا ملا بھی ہوگا کہ نہیں، وہ بھوکا ہے، وہ گرمیوں میں وہاں پنکھا ہوگا کہ نہیں، سردیوں میں اسے کمبل دیں گے یا نہیں۔ آدھی رات کو ہم دروازہ بند نہیں کرتے، ہم آدھی رات کو نیند سے اٹھتے ہیں کہ شاید اس اندھیری رات میں وہ ہمارے بھائیوں کو چھوڑ دے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ بس اتنا کہ ہم بلوچ ہیں، ہم نے پاکستان کا کیا بگاڑا ہے؟
हम इसी कानून के तहत चल रहे हैं। मुझे कहते हैं कि आप गवाही लेकर आए, कानूनी कार्रवाई ऐसी होती है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे भाइयों को लापता करते वक्त नहीं सोचा कि कानूनी कार्रवाई हम तोड़ रहे हैं, हम कानून तोड़ रहे हैं। आप अभी मुझसे क्यों कानूनी कार्रवाई, क्यों सबूत मांग रहे हैं? सबूत ये पिक्चर्स है, आप इनको मुस्तरद कर रहे हैं। मैं कहाँ से गवाह लाऊं? आपने उनको दोस्तों को भी धमकी दी है। खुदारा हम पे रहम करे, मेरे बूढ़े वालिदैन पे। जब मैं यहाँ सड़कों से वापस घर जाती हूँ, मेरे भाई के बच्चे भाग कर आते, कहते बाजी आप हमारे अब्बू के लिए गए थे, नहीं लाए हमारे अब्बू को। खुदारा हम पे रहम करे। हफीज बलोच जो खुशदार में एक टीचर था, उसने क्या बिगाड़ा था? वो मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, उसको स्टूडेंट्स के सामने से मार कर उस पर तशद्दुद करके उसे ले गए। हफीज ने क्या बिगाड़ा था? क्वेटा से 5 भाइयों को लापता किया गया। आप सोचे उस खानदान की क्या हालत होगी, 5 भाई एक करके। क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है हम पर? हम अपनी बलोच कौम से यही अपील करते हैं कि खुदारा आप हमारे साथ खड़े रहे। हर वक्त हर जुल्म के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं, आप हमारे साथ खड़े रहे। शुक्रिया। यहाँ आने वाली हर बहन बेटी की बात यही है कि खुदारा अपनी कौम से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा साथ दें उस आखिरी लापता शख्स तक कि वो बाजियाब हो जाए। मैं कुछ दिन कबल क्वेटा शाल से सरफरा बरादरी के 5 नौजवानों को जबरन लापता किया गया, सना, साकिब, हारून, सऊद, फरहाद। मैं हैरान हूँ कि ज़िंदानों में इतनी जगह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इतने बलोच लापता हो रहे हैं। क्या वाकई ज़िंदान को तह दर तह इतना बनाया गया है कि बलोचों को उसमें वहाँ डाला जाए? आप हमारे बच्चों को क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं? आप हमारे बच्चों के जहनों में, दिलों में अपनी क्या शबीहा बना रहे हैं? आप बता दें, क्योंकि हम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो ये नस्लें परवान चढ़ रही हैं वो सिर्फ लापता लोगों के लिए रोडों पर आ रहे हैं। बच्चे ABC अलिफ बे पढ़ना नहीं सीखते, लेकिन वी वांट जस्टिस। मेरे बाबा को बाजियाब करो, मेरे भाई को बाजियाब करो, यही नारे उनके होठों पर होते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं शब्बीर बलोच की बहन सीमा। मैं सीमा से कहूँगी कि आए आखिर में अपने ख़यालात का मुख्तसरन इजहार करें। शब्बीर बलोच की बहन, मैं पिछले कई सालों से सरापा एहतजाज हूँ और अपील कर रही हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है, मैं पिछले 5 सालों से यही अपील करते आ रही हूँ कि अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है, आप उन्हें अपने ही अदालतों में पेश करें। लेकिन आपको अपने ही अदालतों पर भरोसा नहीं। अब मैं आपसे अपील भी नहीं करती, मैं आपसे अपने भाई को मांगती हूँ, मेरे भाई को किसी भी अदालत में ना पेश करो, लेकिन मुझे मेरा भाई सही सलामत लौटा दो। खुदा के लिए आपको तो अपने अदालतों पर भरोसा ही नहीं है। पिछले 5 सालों से मैं थक चुकी हूँ ये चिल्ला के, चीख के कि मेरे भाई को अपने अदालतों में पेश करो, लेकिन आप मेरी बात ये सुनने को तैयार नहीं। अब मैं आपसे ये मांगती हूँ कि मेरे भाई को मुझे लौटा दें। खुदारा मुझे मेरा भाई लौटा दें। पिछले कई महीनों से मैं खामोश थी, तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि आप थक चुके हो, क्या आपको आपके भाई के बारे में कुछ पता चला है कि आप खामोश हों? उनकी ये बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई। एक पल के लिए मैं ऐसे ही टूट गई कि मुझे मेरे भाई के बारे में काश पता होता, काश उनकी ये बातें सही होती, काश मुझे मेरे भाई का कोई खबर मिला होता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से ये कहती हूँ, मैं इमरान खान साहब से ये कहती हूँ कि पिछले 1 साल पहले आपने हमसे वादा किया था, हमारे सर पर हाथ रख कर ये कहा था कि बेटी आप अपने घर में जाओ, 2-3 महीने में आपका भाई वापस आ जाएगा।
मैं वही वज़ीर आज़म से वही बात कहती हूँ कि आपके इस वादे को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, कहाँ हैं आपके झूठे वादे? आप एक मर्तबा अपने झूठे वादे दोबारा दोहरा तो लें, लेकिन नहीं, आप तो खामोश हो गए, झूठे वादे भी आप नहीं करते। आप तो हमारे प्यारों को मंजर आम पर ला नहीं रहे हो, लेकिन बलूचिस्तान के हर घर से आप रोज़ाना 5-5, 6-6 नौजवानों को लापता कर रहे हो। कहाँ का इंसाफ है ये? कहाँ जाएं हम? आखिर आप हमें ये बताएं, हम कहाँ जाएं? किसके पास जाएं हम? किससे हम दरख्वास्त करें? किससे अपने प्यारों को मांगें? आप तो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन्स पहाड़ों पे चले गए हैं, बाहर किसी मुल्क में चले गए हैं। अब हज़ारों लोगों के सामने उन्हें उठाकर लापता करते हो, आपको शर्म नहीं आती? फिर आप ये कहते हो कि ये पहाड़ों पे गए हुए हैं या बाहर किसी मुल्क में चले गए हों। हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी में भी महफूज नहीं, हॉस्टलों में भी महफूज नहीं, अपने घरों में भी महफूज नहीं। आखिर वो कहाँ जाएं? कौन सा जगह है जहाँ पर वो महफूज रहे? आप उन्हें तालीम हासिल नहीं करने देते। बदकिस्मती से कोई तालीम हासिल कर लें या डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बने, तो आप उन्हें उन्हीं की ड्यूटीज़ पर भी लापता कर देते हो। राशिद हुसैन जो दुबई में काम करने के लिए गया था, आपने उसे वहाँ से लापता कर दिया, वहाँ भी आपने उसे नहीं छोड़ा। उनके कज़न, उनको भी आपने वहीं से दोबारा लापता कर दिया। आखिर आप हमें बता दें, हम कहाँ जाएं? क्या आपके पास मेरे इन सवालों का जवाब है? आप हमें ये बता दें कि आपने हमारे प्यारों को कहाँ रखा है। आप एक बार उन्हें हमें दिखा दें, हमारे दिल को तसल्ली मिल जाए कि वो सही सलामत हैं। पिछले 5 सालों से मैं अपने घर के अपने अम्मी अब्बू, अपने भाई बहनों को देखती हूँ और दूसरे लोगों को देखती हूँ, उनके भी प्यारे लापता हैं। फिर मेरा दिल टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है कि मेरे घर का यही हाल है। बलूचिस्तान के हर घर का हाल यही है। हर घर में मातम है। जहाँ पर कोई खुशी मना रहा होता है तो जिनके प्यारे लापता हैं उनके घर में मातम हो रही होती है। लोग ज़ार पुकार रहे होते हैं कि हमारे प्यारे कहाँ हैं, हमारे प्यारे हमें कब मिल जाएंगे। मैं इमरान खान साहब से यही कहती हूँ कि आपने हमसे जो वादा किया था वो झूठा वादा। अगर अब हमने कोई भी एहतजाज, कोई भी रास्ता अपनाया, अब आपके ये झूठे वादे काम नहीं आएंगे। अब हम अपने प्यारों को लेकर ही वो अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। अगर हमने कुछ भी कहीं भी दर ना दिया तो आपके ये झूठे वादे हमें अब नहीं उठा सकते। मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करती हूँ, खुदारा हमारे प्यारों को हमें लौटा दें। शुक्रिया।